Jab We Talk. Last year, we started this channel to encourage poets and authors so that they can share their writings with a wider audience. Hi, Hari, how are you? Hi Rashmi, So, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to you. Happy New Year to you. So we again Thank you. have Nalini Srivastava with us, who's a teacher in a school, and we did her first part, and we wanted to talk to her more. We wanted to listen to her Yes. poetry more. So we have Nalini back on our show. Hi, Nalini. How are you? Namaste. Hi. Oh, happy New Year to both of you. Thank Thank you. you, And Nalini ji. thanks for this privilege for taking me again on the show. Thank you. Yes. We wanted you to be back because one thing is the first session had a lot of poems that were not covered, and we wanted to cover it in this session. Thank you, thank you. It's always a delight being part of this show. We Yes. actually Thank you very much. enjoy this entire time that we are having online. Though we are not meeting each other, just meeting each other on cam through this video is such a pleasurable and a delightful experience. And we hope that we meet again Yeah, live we keep again. meeting each other and more new poets also. The fraternity should increase so Yes. that it's such a good in night pastime that in night when I'm not like really sleepy, I often go through your channel only. Just listening to poems really, matlab, it's so enjoyable. The reading is less and listening is definitely watching it is more pleasurable. Yeah, I understand. As you rightly said, as Nalini ji has rightly said, I think poetry should be listened, and reading, of course, is pleasurable, but listening to the poets is much more Yeah, interesting and more pleasurable. senses are involved, and I think the highs and lows of our voice and all everything adds to the impact of the Mm, poetry. Yeah. very nice. So So Nalini, I want to, sorry, Hari. yeah, I was just trying to ask Nalini ji, which we had not asked last time. Since how many years she has been writing poems and Uh, to be honest, it was I'm not very sure of the year, but it was during after starting my teaching career. So I Okay. would mm, say after 1995, okay. 1996. A free time, usually I started writing. I used to take the students for various inter school functions, and while Mm, they were performing or preparing and I was free, I found it very boring because initially I was not this talkative or social, okay. so I would prefer to pen down something instead of engaging in a conversation. Mm, And I wrote, so many of my works might be lost also because I wrote on whatever I could lay my hands on. Yeah. जो भी हाथ में पर्चा आ गया, कॉपी का पेज आ गया, डायरी आ गई, कुछ आ गया, उस पे लिख दिया. बहुत सारे पेजेस अभी भी मेरे पास ऐसे फाइल अप रखे हैं जिनको अभी प्रॉपर पेन डाउन भी नहीं किया है मैंने. तो शुरुआत ऐसे थी. बट फिनिश जो मेरी आई है, आई बिलीव कि 2002 2003 से आई फाउंड माई पोइट्री गुड इनफ टू शेयर. uh, लिखती थी पर मैं पहले शेयर बिल्कुल भी नहीं करती थी. अभी कई बार mm, पुरानी पोएम्स को थोड़ा एडिट करके भी मैं शेयर करने लगी हूँ. तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि You have a 2000. page also on Facebook, right? हाँ. You have a page on Facebook where you Yeah, I like. have a page on Facebook, Nalini's Verses. Yes. And it's not just about me. Anybody who is a member there, they can share. And we enjoy mm, poetry, good poetry. And through that, like there is a member, Meena auntie, and then Malati auntie, they have told me about few poetry sites in Hindi. Okay. But that is very well, mm. the opportunities are there. I would share it on the page also. My English poems you can always find on Destiny Poets. It's UK. And Destiny Yeah. Poets. You can share the Yeah, link. sure. I will share the link. It's simple. वैसे I will share Well, it in writing yeah. also. Yes. www.destinypoets.uk.com, and that website has been instrumental Instrumental. in shaping my English poetry Yeah.
because it's a UK site, so it's only English. So there people give a good criticism. Like if something is missing, sometimes like a typo error happens. So the editor would inform me, ma'am, please correct it. Yeah. Initially, I did not pay attention to the capitals and all because in flow, the poetry, for me, only poetry mattered. But form and syntax also matters, that I have realized. So often they used to inform, then they started, you get a good feedback there. When you post a poet, whosoever reads can leave a feedback. Correct. That's very motivating, encouraging. And if something is missing, and sometimes Yes. if there is a long gap, then I get a, matlab, everybody who is writing there, they get a mail. We haven't heard from you. We are waiting to hear from you. Then you realize, oh God, for so many days I have not written. Now I am used to writing on a system only. Earlier I used to pen it down. अभी मुझे system चाहिए होता है लिखने के लिए. अभी वो मजा नहीं आता है लिखने में, फिर क्योंकि वो डबल एफर्ट है ना, उसमें Yes, yes. लिखा फिर कॉपी किया टाइप किया. तो सिंपली गो टू द साइट, यू कैन टाइप योर पोएम, no restriction, no age limit, no payment, nothing, They're but very. the work should be original, that's it. Louis Kasachkin is, running this website Yeah. from UK, and he's extremely encouraging. He himself writes some awesome poetry, Yes, and yes. people all around the world are contributing on Destiny Poets. I also found I published first time I published my English poetry on Destiny Poets. Till then, I hadn't shared it anywhere. Yes. So Okay. Destiny Poets is Probably very I special. will I will also Yeah, explore please, it. I have not please. explored that website. You will love it. You will love it. The vibes there are very positive. Okay. Even if there is a suggestion, na, it is so beautifully worded. Where we respect each other's work. Right, Even right. if correction is required, it's in a very gentle tone. Recently, I committed a blunder in one of the poems because my laptop has some button issues. The N sometimes doesn't work, and I didn't pay attention. So I was informed. But you never feel bad the way they communicate it to you. Then every Yes, month yes. end, Rashmi knows this, every month end they take out the best, most recommended poem, most recommended poets, most recommended critics. And then annually also they take out a result. Yeah. Overall. Oh, thankfully, Very nice. one regret I have that I have featured as a poet of the year only once since 2013. But in most recommended, I am always there. She's So always I take it as a sense of pride. It's my Yes, achievement. yes, true. true. That means you are getting read. Your Yeah, poems are the being read. recognition we all crave for. And Yes. we get addicted. I don't know whether you would agree or not. You get addicted to recognition. At least Yes, yes. somebody is reading, somebody is reciprocating. Even Correct. if it is on the website only, in the list of 12 poets or 10 poets most recommended, it gives you a very distinct high. And And that's also very good. the comments are more genuine instead of just excellent or Yes. one-liners, one-worded. They have Huh. more explanations. Actually, in feedback, you can't write less than what, 20 words. You can't Uh, write less than 20 words. It won't accept only. You can't write splendid and send it. So that's it's very nice. Yeah, it's a Anybody who loves poetry and writes in English should explore it. yes. Recently, I haven't read much from Rashmi there because I No, think you are using your blog. yes. Hmm. I So used to that's write in a another beautiful website. thing. I used to write in a website called hubpages.com. That I seems started to. writing, that reminds me, poetry.com. Uh, And I wrote a lot over there, but the poems are not safe over there. I found my poems lifted by youngsters and entered in NI. NI is Newspaper and Education Scheme by Times of India. And it was published there and I found it. So then I stopped posting over there.
True, true. Just explore hubpages.com also. It is Oh, good. I will. Please share the Yeah. link. I will also in the Sure. Yeah. description box. We'll share all the possible links, even the Hindi ones I'll send, so that anybody who is Yes. writing and looking for avenues or places to True. publish, they can. Because that website also pays if you have a lot of readers. They will also pay you. Okay, Mm. that's really, that's really. Yeah. So should we start with the first? गलतियों से Yes. अलग मैं भी नहीं वो भी नहीं. That Yes, is a yes. wonderful one, huh, Nalini? Actually, that's in a humorous vein, but it has a very strong message that usually we don't accept our mistakes, but for a relationship to survive, sooner or later, if we communicate, it always leads to a better outcome. So I'll start with this. गलतियों से अलग मैं भी नहीं वो भी नहीं दोनों इंसान हैं खुदा मैं भी नहीं वो भी नहीं वो मुझे और मैं Mm. उसे इल्जाम देते हैं मगर वो मुझे और मैं उसे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता मैं भी नहीं वो भी नहीं गलत दोनों हैं गलत दोनों हैं दोनों जानते हैं मगर ये हकीकत है मगर ये मानता वो भी नहीं मैं भी नहीं Very nice. Very. हम लोग का ईगो जो होता है ना, वो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो एक्चुअली वी डोंट ऐसे issues रियलाइज होते कई बार वो हमको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट वो सेल्फ रिस्पेक्ट से कब ईगो में चला जाता है हैं. समटाइम्स वी डोंट रियलाइज Yes, yes. एंड रिसेंटली Nalini also had something. And we misunderstandings happen. Yes, misunderstandings happen. Uh, And actually, sometimes I am taken, like people tell me that I come across as a very loud, aggressive person. So sometimes I don't convey for the fear of losing the friend. But I've realized that once you convey, na, things are clarified. things are clarified, no tension on both the sides. Tension. Yes, we both acknowledge that. जितनी बातें ज्यादा होंगी उतना ज्यादा अच्छा है. हाँ. हाँ तो वो कंफ्यूजन अगर है तो थोड़ा मतलब मुझे वाकई ध्यान रखना पड़ता है कि मैं मेरा वॉइस एक तो टीचर होने की वजह से मेरी वॉइस इतनी लाउड है Yeah. कि अगर मैं सामने से बोलूं तो कई लोग ऑफेंसिव में ले लेते हैं कि नहीं आप ऐसे चिल्ला के बोल रही हैं आप इतना तेज कैसे बोल रही हैं जबकि इंटेंशन हर्ट करना होता ही नहीं है नहीं होता है. तो वही इसीलिए ऐसे ही मूड में मैंने लिखी थी पोएम कि मतलब अगर हम लोग गलती वो कोई भी हो सकता है वो आपका बिलवड हो सकता है दोस्त हो सकता है फैमिली मेंबर हो सकता है एक स्ट्रेंजर हो सकता है तो अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा अपनी गलती मान लें और एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर वरना हमारे रिश्ते जो हैं बहुत आसानी से खो जाएंगे बिखर जाएंगे बहुत अच्छी. कौन कहता है खामोशियां खामोश होती है? कौन? हाँ ये बहुत छोटी सी है मतलब इट्स मोर ऑफ अ कपलेट लेकिन बहुत मतलब आई हैव डिस्कवर्ड पहले मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता था लेकिन कई बार खामोशियां इतनी नॉइजी होती हैं कि यू वांट सम कंपनी सम नॉइज सो कौन कहता है खामोशियां खामोश होती हैं खामोशियों को खामोशी से सुनो खामोशियों को खामोशी से सुनो क्या पता खामोशियां वो कह दें जिनकी आपके लफ्जों में तलाश होती है बहुत सुंदर. So तो finally, खामोशियां बोलती हैं पर सुनने वाला चाहिए बिल्कुल, you got बिल्कुल. to be perceptive to listen to the silences Yes, yes. so मैंने silence. कई बार ऑब्जर्व किया है कि कई चीजें बोल के समझाई नहीं जा सकती हैं, ना बोल के समझा सकते हैं. और कई बार कहीं जगह पे चुप हो जाना ही बेहतर होता है It is like a filter. yes it is like a filter definitely Yes, बहुत सुंदर. It has a life lesson for many. thank you Okay, next हम जैसे आवारा आवारा सुनाइए. फितरत हाँ के शख्स आम और मामूली नहीं होते. हम जैसे आवारा फितरत आवारा वर्ड यूजुअली बड़ा नेगेटिव सेंस में लोग लेते हैं लेकिन अगर आप हेमंत कुमार का वो गीत याद कीजिए है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा
वो गाना इतना अपीलिंग है क्योंकि हम सबके अंदर वो एक जो नोमैड की या एक बंजारा वाली जो फितरत होती है वो हम सब में कहीं छुपी होती है। तो उसको एड्रेस करते हुए मैंने ये लिखा था कि हम जैसे आवारा फितरत के शख्स आम और मामूली नहीं होते, खास बेचैनी पालते हैं दिलों के जख्मों को सलीबों से कुरेद कुरेद के। सलीब इज द क्रॉस, जिन्हें ना पता हो तो सलीब जो है जख्मों के सलीब हैं, और उसको उससे हम कुरेद कुरेद के बेचैनी पालते हैं, खास बेचैनी पालते हैं दिलों के जख्मों को सलीबों से कुरेद कुरेद कर। जिगर का खून हमारा वो स्याही बना लेते हैं हम बुत परस जो मूर्ति पूजा करते हैं या किसी को आइडलाइज करते हैं। जिगर का खून हमारा वो स्याही बना लेते हैं हम बुत परस्त, कि जिससे इनकलाब की आग लगा देते हैं जहां में हम। इनकलाब बहुत कैन बड़ी बी बात है एनी इसका। काइंड ऑफ रिवोल्ट। No, silent people are most dangerous because यस they've यस, got this hidden fire inside them. एक ज्वालामुखी होती है इनके हाँ, अंदर। वो जब तक नहीं फटता है तब तक उसकी शक्ति का, उसके पावर का एहसास किसी को नहीं होता। डेंजरस नॉट इन एनी बैड सेंस, लेकिन जो लोग खामोश रहते हैं तो वो जिस दिन बोलते हैं तो वो सब कुछ चुप कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन भी नहीं बनाना चाहिए कि आदमी अपने आप को दबा के रखे और इतनी सारे इमोशंस अंदर रखे कि ज्वालामुखी फट जाए। यू नो हरी जी, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी। अभी मतलब तब तो ऐसा था, आप मेरे साथ 5 घंटे बैठे हो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी, आप कुछ पूछोगे तो हाँ हूँ मैं जवाब, एंड दैट्स इट। टीचिंग में आने के बाद मैं बहुत बोलने लगी। तो पहले जब मैं नहीं बोलती थी और मेरे मम्मी पापा कहते हैं तब तुमसे डील करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि यू वुड गो इन योर कुकून, योर साइलेंस, और वो थक जाते थे पर मैं नहीं बोलती थी, नहीं बताती थी। अब कहते हैं तुम बोल लेती हो, चिल्ला लेती हो, बेटर है, हमको पता होता है क्या बुरा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मतलब आपने देखा भी होगा बच्चों को भी, कई सारे बच्चे पहले हमारे टाइम में बहुत सारे मेरे ख्याल से इंट्रोवर्ट्स ही थे। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, आजकल तो काफी आजकल एक्सट्रोवर्ट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आजकल के भी बच्चे आपको, यू हैव टू बी, मतलब एज अ टीचर आई हैव कम अक्रॉस कि किस बच्चे के अंदर में कितनी तकलीफ या कोई टर्मोइल चल रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा है। तो बीइंग अ टीचर मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे, मैं आई एम अ वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर। जब बच्चे कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग देयर बॉडी लैंग्वेज, और उससे आप पता कर सकते हैं वी रियली, आजकल की जनरेशन इतना टेंस है कि उनको बहुत ही सेंसिटिव हैंडलिंग की जरूरत है। जो बिल्कुल। टीनेजर्स या यूथ एकदम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब है, बट वो उनको समझने वाले लोग नहीं है और फिर वो गलत तरफ रास्ता पकड़ लेते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो है। ये, हाँ, बट एक अच्छी बात है कि आजकल मेरे पेरेंट्स तो तब भी बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन आजकल की पेरेंट्स थैंकफुली फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। वो नहीं कि हम लोग बोल नहीं पाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट वे थोड़ा लिबर्टी, वो इट्स अ थिन लाइन टू मेंटेन, लेकिन पता थोड़ी लिबर्टी भी आजकल के बच्चों को मिलनी चाहिए और मिलती है, बट यस द लाइन शुड नॉट बी क्रॉस्ड। वो अंदर के एक्चुअली हर टीचर कहीं फैमिली ना कहीं में, आ ही जाता है। जी जी, हर फैमिली में कुछ ना कुछ तो एक कैरेक्टर होता ही है। तो दैट वर्ड कैरेक्टर इज वेरी गुड। और मुझे तो कुछ आजकल के कैरेक्टर, बच्चे बहुत ही ज्यादा मैच्योर लगते हैं, दे अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स इन अ वेरी they because they've lost their innocence too early, too much exposure, too much. हम लोग जो चीजें 30s में जानते थे या 25 में जानते थे, आजकल के 6-8 साल के बच्चे ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, एंड यू वंडर लाइक व्हाट, ये क्या है। सैडली दे लूज देयर इनोसेंस वेरी अर्ली। चलो हकीकतें देखते और हैं सबसे अभी। हाँ, अभी हकीकतों की बात करते करते हकीकतें आ गई। हकीकतें आ गई। आईने की सूरत में सीरत नहीं दिखती। हाँ, आईने की सूरत में somehow मिरर इज माय फेवरेट ऑब्जेक्ट। मेरी स्टोरीज में भी आपको मिरर बहुत मिलेगा। तो आईना, द मिरर, आईने की सूरत में सीरत नहीं दिखती,
नियत खराब होने में वक्त कहाँ लगता है। आज जो आपके तबस्सुम की वजह होता है, तबस्सुम स्माइल, आज जो आपके तबस्सुम की वजह होता है, कल अश्क तोहफे में देकर चल देगा। अश्क, टीयर्स, कल अश्क तो तोहफे में लेकर चल देगा। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अच्छों को बुरा बनते देखा है मैंने। कभी ऐसा भी हुआ है कि काले बादल से चमकी बिजली ने किसी की अंधेरी दुनिया कुछ पलों के लिए ही सही रोशन कर दी। वेरी नाइस। This तो I really like. हाँ, आप लोग का मैं व्यू पॉइंट जानना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ तो मेरी एनालिसिस आपकी इस पोएम में ये है कि कभी कभी हम जो है गलत समझ जाते हैं दूसरों को, और इस कारण से मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बिल्कुल साफ हैं, मिरर की तरह, लेकिन होते ऐसे नहीं है। तो इस कारण से समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किस तरह के पर्सन है, क्या है उनका पर्सनालिटी, बिफोर यू जज समबडी और बिफोर यू बिलीव समबडी। But when you think so of very true. Actually, इमोशनल लेवल, क्या होता है कि हर वक्त बहुत रैशनली थिंक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई मीन यू टेंड टू समटाइम टेक इमोशनल डिसीजंस and you trust somebody. So there are all type of people in this world. Some people give you pain, some people make you happy, and even if somebody gives you pain, they do come back to you. So there's nothing that can be calculated in life. This is a mixture of everything in life. Sorrow, pain, happiness, everything. There's a mixture of everything in life. So वही yeah, true, हकीकत है. That's true, what I true. feel. वही हकीकत है या और हकीकत में नॉट टेकिंग एवरीथिंग एट द फेस वैल्यू। Yeah. हम कई बार फेस वैल्यू पे चीजें ले लेते हैं। तो फेस वैल्यू जैसे आईने में तो फेस ही दिखता है, बट एक्चुअली द इनर सेल्फ इज वेरी, इट माइट बी वेरी डिफरेंट। Yeah. ये लास्ट 2 सेंटेंसेस आप थोड़ा समझाइए इसको। काले बादल से चमकी बिजली ने किसी की अंधेरी दुनिया कुछ पलों के लिए सही। हाँ, ये मैंने लाइक यूजुअली वी ऑलवेज एसोसिएट थंडर विद डिस्ट्रक्शन, कि बिजली गिरी है कहीं कहीं पे। कई बार हम लोग बहुत तेज थंडर की आवाज सुनते हैं और लगता है कि अरे कोई पेड़ गिरा होगा, किसी का नुकसान हुआ होगा, बिजली गिरी होगी तो किसी का घर भी बर्बाद हो गया होगा। लेकिन जिसकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी है, जिसकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी है, उसके लिए शायद वो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ही एक लाइटनिंग मोमेंट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का बुरा ही देखें, डिस्ट्रक्टिव पार्ट ही देखें। समटाइम्स इवन देयर इज अ हिडन ब्लेसिंग मे बी, और मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस और मोमेंटरी जॉय। यूजुअली लोग थंडर से डरते हैं, बिजली से डरते हैं। बिजली जब चमक रही होती है तो ज्यादातर लोग डरते हैं, दे वुड प्रेफर टू स्टे इंडोर्स। बट वो अपने आप में, मुझे तो वो साइड बहुत खूबसूरत लगती है वो, लेकिन आपके उसको देखने के लिए आपके पास खुला मैदान होना चाहिए। ये आजकल के जो टॉल स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसमें आप लाइटनिंग को एंजॉय नहीं कर सकते, या तो आप कहीं ऊपर रहते हो। अदरवाइज उसको देखिए तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता हो, कभी कभी वो ऐसे ही, मतलब ये तो एक यहाँ पे हमने फेस वैल्यू लाइटनिंग ले ली। कई बार इस लाइटनिंग को हम एक मेरी एक तकलीफ या कोई एक सैड हैपनिंग देख सकते हैं। वो सैड हैपनिंग में भी इट लीव्स बिहाइंड सम मैसेज। डोंट यू थिंक आवर बैड एक्सपीरियंसेस लीव अस मोर मैच्योर? यस यस। दिल टूटता है तो उसके साथ हमें कुछ एक कहीं थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाती है। वो दिल चाहे कोई भी तोड़े, या कोई कभी झगड़ा हो गया, सिंपल झगड़ा हो गया अपने दोस्त से या सहेली से, तो उसमें कई बार अपनी गलती भी समझ में आती है, सामने वाली की, और या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसमें अगर हम झगड़े को ओवरकम कर लिया तो हमारे पास रोशनी ही होगी। जरूरी नहीं है कि वो अंधेरा ही रहे। ऐसे मतलब मेरा और एक चीज और है कि इसमें आप ये भी कह रहे हैं कि रियलिटी, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हर रियलिटी अपनी एक, उसकी एक अलग रियलिटी होती है। हर पर्सनालिटी के हिसाब से रियलिटी होती है। कुछ लोगों को कुछ नेगेटिव लगता है, कुछ लोगों को कुछ पॉजिटिव लगता है।
हाँ और मतलब मुझे लगता है आजकल हम लोग टोटल रियल सेल्फ तो दिखाते नहीं है, हमारे अलग अलग क्या कहते हैं मास्क पहन के घूमते हैं हम जहाँ जाते हैं। मैं जो अपने क्लासरूम में या वर्क प्लेस में होंगी वो अलग है, मैं अपने मार्केट में जो एंजॉय कर रही होंगी या नहीं एंजॉय कर रही होंगी, मजबूरी में गई होंगी वो अलग है, घर पे अलग है। तो वो अलग अलग हमारी शख्सियत जो है ना वो हमेशा हर कोई नहीं देख सकता। yes, You got to spend time with someone to see all the faces or the face behind the mask of a person. करेक्ट, True. बहुत अच्छा है ये। तो भाई मेरे ख्याल से हकीकतें जो हैं ये आप मेरे ख्याल से इसमें ये समझाना चाहती हैं कि बहुत सारी हकीकतें अलग अलग होती हैं, हर किसी के लिए एक ही हकीकत नहीं होती है, हाँ अपने अपने विजन के हिसाब से अपने अपना हकीकत अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक का अपना रीजन होगा। अब वो एक सोल्जर जो दूसरी तरफ से लड़ रहा है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, पर हमारे लिए वो एनिमी है, पर अपने देश के लिए तो या हमारा उनके लिए हमारा सोल्जर एक एनिमी है, पर वो अपने देश के लिए जो अपनी शहादत या अपनी सेक्रीफाइस करता है। तो हम Yes. सिर्फ वॉर देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली both have a reason to be there on the front. बिल्कुल। So there is always the other face of the coin. Yeah, exactly. But at a time we see only one face, no? Yes. सो मैं अलग Okay. हूँ, ये वाली कविता मेरी सबसे फेवरेट है आज की। फेवरेट जो नलिनी की है वो बहुत सारी कविताएं हैं, मैंने नलिनी के अगले हिंदी बुक के लिए ब्लर्ब भी लिखा है और मैंने एक ही दिन में पूरा पढ़ा है वो बुक। सो आई हैव लव्ड ऑल हर हिंदी पोएम्स एंड आई बिलीव हर हिंदी पोएम्स आर एक्सीलेंट। I mean, sorry, Thank you, thank you. I like Hindi, your Hindi poems more than your English poems. मुझे तो लगता है। Even I also write Hindi poems more than my English ones. क्योंकि अपनी मातृभाषा का वो अलग फील आता है ना, मन से निकल के आता है। और इंग्लिश में बहुत सिंपल लिखो तो अब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लगता है थोड़ा और अच्छी वोकैबुलरी, तो और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिख दो तो रीडर के लिए मुश्किल है, इसलिए हिंदी सिंपल है। सिंपल है। तो मैं अलग हूँ। हाँ, मैं अलग हूँ। Amar, I always really believe that I'm very different from usual people. I am the dark horse of my family, and I don't mind that. I don't mind that. तो मैं अलग हूँ। छिटके बादल के टुकड़े आसमान पर, थोड़ी सी बारिश सबसे मन पर, आंधी के थपेड़े, टूट के बिखरती यादों के टुकड़े, वो फोटो एल्बम के बाहर बिखरते, वो मोती से आंसू छलकते टपकते, खाक से बदतर जमीन पर छिटक कर, सोने सा तन चांदी सा मन लेकर भी, खुशी है भटकती मलिन सी लिपट के चंदन से। मैंने है देखा सपनों को संवरते आंखों के भीतर, फिर उनको धूमिल होते हुए भी देखा। जिंदगी है पहेली खो जाती हूँ मैं, भूल भुलैया की छत पर खड़ी रहती हूँ अक्सर। दुनिया को भागते दौड़ते नाचते झूमते देखती हूँ मैं अलग हूँ सबसे। रोती हूँ दिल से जब कोई जाता है दूर, दिल टूटता है अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर मैं फिर भी आंसू आंखों में भरकर मुस्कुराती हूँ भरपूर, मैं अलग हूँ सबसे। Yes. Hari, you want to say something on that? मुझे मुझे ये इस पोएम से ये मतलब नलिनी जी की अच्छाइयाँ जो है, जो सादगी है वो इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो it looks like to be it's a autobiographical poetry. हाँ मतलब क्यों नलिनी जी आपके जैसे ये है ना, रोती हूँ दिल से जब कोई जाता है दूर, ये मेरी बचपन की यादें हैं। मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आता था और वो जाता था और हम लोग रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, आई यूज टू क्राई एंड क्राई। और मेरे मतलब वो रिश्तेदार सब कहते थे ताई जी हुई बुआ, और अक्सर मिलते थे हम, बट एवरी टाइम दे वुड गो आई वुड क्राई।
तो कहते थे तुम क्यों रोती हो, मुझे कहा मुझे जाना नहीं अच्छा लगता, किसी का भी जाना नहीं अच्छा लगता है। तो आजकल आप मेहमान चाहते नहीं आजकल के लोग, लेकिन आई वोंट माइंड, हाँ लेकिन कोई आए तो जाए नहीं, दोस्त बने तो छोड़े नहीं, वो वाली बात है। तो आई थिंक वो लिंगरिंग की हैबिट को मैंने कहीं डिस्कस किया है, और ऑब्जर्वेशन, जैसे फोटो एल्बम से बाहर बिखरते, आई एम सो फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफ्स, मेरे कमरे भरे होते हैं, वॉल्स भरी होती हैं, अभी भी पीछे भी आपको फोटोज दिख रही होंगी, मेरे घर में फोटोज आपको बहुत दिखेंगी, और मतलब हजारों हैं फोटो, जो कभी भी जब कोई काम नहीं होता है तो मेरा काम होता है फोटो देखना। तो ऐसे ही अपनी कुछ जो आते हैं उनको मैंने एक्सप्लोर किया इस पोएम में। बिल्कुल, ये पूरी ऑटोबायोग्राफिकल है आपकी ये पोएम। तो इसमें मतलब ये तो बस ऐसे कहना, मतलब अपने बारे में बताने, जैसे सीवी अपना सीवी बनाते हैं उस टाइप का है ये पोएम। हाँ ऑटोबायोग्राफिकल है, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट। मैंने वो गुलजार के जो टुकड़े टुकड़े में, जो फिल्मी पोएट्री नहीं, जो उनकी अपनी पर्सनल वर्सेस है, उसमें जो वो पैटर्न ट्राई करते हैं ना, छोटे छोटे दो तीन वर्ड्स के फ्रेजेस, वो मैंने ट्राई किया था इसमें। यूजुअली अदरवाइज मैं लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करती हूँ पोएम में, पर इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़े लेके कोशिश की थी कि मैं एक पोएम लिख सकूं, एंड आई वाज सेटिस्फाइड। इट्स नॉट वेरी कॉमन, अभी भी ये स्टाइल मेरा है नहीं, इसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती है, इट डजंट कम नेचुरली टू मी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप अपने किताब में डाल रही हैं ये वाला पोएम? हाँ हाँ बिल्कुल है। वैसे वो पोएम, मतलब मेरी जो बुक आ रही है वो तो वो लव के एस्पेक्ट्स पे है, और ये ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है, बट आई एम प्लानिंग टू इंक्लूड इट इन द फॉरवर्ड कहीं पे, उसको मैं यूज करने वाली हूँ। हाँ ये अच्छी आइडिया है, टू इंक्लूड इट इन द फॉरवर्ड, इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, वो एक पेज पे ये पोएम, उसके आगे उसका जो फॉरवर्ड होगा वो होगा, और फिर वो द बुक विल बिगिन। वी आर वेटिंग। मैंने पढ़ भी ली। Hopefully within 1-2 months you'll get it. Great. I was actually planning कि 5th February हो जाता, मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, लेकिन वो नहीं हुआ, तो चलो फिर वैलेंटाइंस डे ट्राई करेंगे, या होली मेरा बड़ा फेवरेट फेस्टिवल है, होली पे ट्राई करेंगे, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट डेट होगी जब हम इसको रिलीज करेंगे, बट इट इज इन द लास्ट स्टेजेस। Yeah, we are waiting. So I'll be writing a review also again. So. Oh yes, and you write so beautiful reviews. My husband always says me, वो तुम्हारी वो रश्मि जो है वो सबसे अच्छा रिव्यू लिखती है, मतलब the way you have an insight into me, वो वाली बात है। मैं बहुत वो पोएट्स है ना, अभी हरी सर भी रिव्यू लिखेंगे ना हमारी पोएम्स का। बिल्कुल बिल्कुल, आप भेजिए उसको, अभी भेजा नहीं आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगी। नलिनी, you want to drink water? पानी पीना है तुमको? I'm having hot water. I'm having because गला थोड़ा सा यहाँ पे सडनली चिल आया है। अभी दिल्ली में तो बहुत ठंडा था, लखनऊ में इतना नहीं था, लेकिन आज 6 डिग्री था। मुझे नहीं सर्दी लगती है, पर गला मेरा अफेक्ट हो जाता है। हाँ इसीलिए। चलो अभी जाते हैं। ये इफ आई डाई टुनाइट, ये तो बहुत ही सुंदर कविता है। इफ आई डाई टुनाइट, इट्स अ वेरी टचिंग। You know, this is because my husband is away, and that fear is always there, that though I am not that old, but still you know, life is so unpredictable कि लगता है कि suddenly if I die and I'm not able to say my last things to my husband, my beloved, so I wrote this poem कि if you are not there when I breathe my last, this is my last message for you, and I've sent it to him like properly done, so that he will have it as my last words, because these days life makes you do things you don't like to. Okay, if I die tonight, let's say I have no plans to die for at least 20 more years. So if I die tonight, here is my will, my beloved. My memories just belong to you.
and my ashes to be dug in my garden. When the spring will come, they'll bloom with fragrances, and in autumn, they will lie embedded in the soil inside of fallen leaves. In the winter, they will stir inside the buds of poppy. But in the summers, put some shade in a corner, and I will rest there till I bloom again. Do not preserve my memorabilia unless you want me to haunt around. But yes, my home and your heart will be my abode forever, whether you want or not. Very Beautiful. beautiful poem. Actually, I रश्मि तुम have a बोलो. garden and I'm very possessive about it. So I really want to be there haunting forever. I often tell my family members that when I'm gone, you can always come and visit me in my garden. You will always find me there, and people tell me what a scary thought कि हम आएंगे और तुम जाने के बाद भी वही बैठे मिलोगी. काफी इमेजिनेटिव पोएम है ये. Yeah. Thank you. लेकिन मुझे लगा कहीं आपने कविताएं पढ़ी है, बट ये वाली बहुत ही अलग है. I mean, this is simply fantastic. I just loved it. yes yes हाँ, किसी इसको एक्चुअली लिखने के बाद मैं रोई भी खूब थी. Just imagining, I cried a lot after writing this. किसी वीक मोमेंट में आपने ये लिखा है कि मुझे लगा है शायद किसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब रही थी उस दिन, एंड ये शुरुआत की मैं बताऊं, ये अभी लिखा है मैंने जब लॉकडाउन हुआ था, और ये था कि कोई कहीं आ जा नहीं सकता है. माय हस्बैंड इज स्टक अब्रॉड, और उस टाइम पे मतलब इट वाज मैडनिंग स्टेइंग इनसाइड ऑल द टाइम एंड ऑल. तो उस समय मुझे लगता था कि हाय भगवान, एंड आई हैड अ माइनर एंजाइना पेन वन नाइट. So I had to be rushed to hospital. So उस समय मुझे लगा कि हे भगवान, इस समय अगर मुझे कुछ हुआ, मैं तो मेरे बेटे के अलावा किसी को भी नहीं देख पाऊंगी. तो it was such a crazy moment. मतलब बहुत उस दिन मैं परेशान थी जब मैंने पोएम लिखी, but it was a went out. I felt better after writing this. कि I am going to be around in one way or other. ये अच्छी चीज है हम लोग के आर्टिस्ट लोगों के लिए, पोएट्स के लिए, कि कोई भी वीक मोमेंट भी जो है हमें एक इंस्पिरेशनल पोएट्री लिखने की मजबूरी हो जाती है हमारी. कुछ ना कुछ तो लिखिए. मेरा तो फेवरेट सेंटेंस है कि माय पोएट्री इज माय कैथारसिस. जब भी मैं बहुत अपसेट होंगी या बहुत खुश भी होंगी तो भी, मतलब समटाइम्स यू डोंट फाइंड वर्ड्स, कहते हैं लोग, कहते हैं शब्द नहीं मिल रहे, सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते, लेकिन अगर लिखिए या ड्रॉ करिए, पेंटिंग करिए, आई विश आई कुड पेंट. So I'm sure we can express our joy, our sorrow, our regrets, happiness, everything. Beautiful. बहुत सेंटिमेंटल है पोएम ये, बहुत सेंटिमेंटल है और बहुत ही एकदम टचिंग है. कोई भी पढ़ता है तो उसे लगता है कि हाँ, किसी वीक मोमेंट में हमारा भी ऐसा ही हाल होगा, तो शायद इसी तरह से हम लोग भी सोचेंगे. हाँ, बट वो मैं कहती हूँ ना, मैं अलग हूँ. आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट सैल्वेशन. मोक्ष नहीं चाहिए मुझे. आई एम नॉट लुकिंग फॉर सैल्वेशन. मोक्ष नहीं चाहिए. आई वांट टू बी अराउंड, मतलब इवन आफ्टर आई एम गॉन, आई वांट टू बी एबल टू लुक एट माय लव्ड वंस कि हाँ वो अच्छे हैं, ठीक हैं, मेरे जाने के बाद भी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ रो नहीं रहे हैं. तो ये कि याद करो, पर मुस्कुरा के याद करो, रो के नहीं. कैसे आप अपने आप को मतलब दूसरों की नजरों में रखना चाहती हैं जाने के बाद भी, ये चीज आपने इसमें बहुत अच्छे से लिखा. हाँ, इसमें एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है. डू नॉट प्रिजर्व माई मेमोरेबिलिया अनलेस यू वांट मी टू हॉन्ट अराउंड. You just keep me in your thoughts, because if you keep my memorabilia, I may come and shuffle through the pages and have a peek at you. आप डरा भी रही हैं लोगों को. क्या हुआ रश्मि? Are you imagining me shuffling through the pages? नहीं, आप डरा भी रही हैं लोगों को. No, in fact, those two lines are my favorite too. मुझे अच्छा लगा वो लिखा हुआ. I have written. मैं तो कहती हूँ, और बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है मिलने आ जाना. यूजुअली सब कहते हैं भैया
जाने के बाद मत आना। So you should be like that close कि आप उस फॉर्म में भी आप मुझे एक्सेप्ट कर सके। सर नहीं करेंगे, हरी सर नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं बाद में नहीं। नहीं, मैं भूत को नहीं मानता हूँ, भूत नहीं मानता हूँ, ऐसा मानते ही भूत को नहीं नहीं है। मानता हूँ। ओके, तब तो आपको कंफर्म कराना पड़ेगा। भूत नहीं कुछ नहीं क्योंकि होता मैं है। लाइक नहीं, भूत कुछ नहीं होता, सुपर नेचुरल स्पिरिट्स होती है। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से उनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी है, हम उनके में दखल ना दें, वो हमारे में दखल ना दें। राइट, पावर, अब भगवान को किसने देखा है, लेकिन भगवान है, तो ऐसी एक कोई दुनिया है सुपर नेचुरल की, उसमें डरने जैसी मुझे कोई बात नहीं लगती। मैं जी बहुत जी सारी रश्मि, यू आर टीयरी आईड। यस, मैं चश्मा लगा लेती हूँ। आई गॉट यू। नहीं, ये पोएम ऐसी है कि अगर वाकई में मजाक में नहीं टालो और आराम से पढ़ो तो मैं खुद ही, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दैट डे कि मैं अकेले अकेले चली जाऊं। अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आई हैव नो प्लान। भगवान को भी बोला अभी 20 साल मत डिस्टर्ब करना प्लीज। मैं कुछ बोलूं इसके ऊपर? यस यस प्लीज प्लीज बोलो प्लीज। Written this is, it's a note to the beloved, a rather unique one, and the poetess calls it a will. Generally, a will is written for a property, you know, kind of financial, something related to finance, so that the next generation inherits it. But here it's about longing, belonging, and the treasure of memories. Is a desire to be one with the nature and experiencing the different expressions of nature even after leaving this world. Is a desire to exist in the form of memories. And that is the parting gift given to the beloved, whose heart is the abode that is home forever. Such a beautiful thought of gifting memories to your beloved and making his heart a place to reside forever. सही है ना, बिल्कुल। जब ये सोचो वक्त मुस्कुराहट आनी चाहिए, So, आंसू नहीं, मुस्कुराहट आनी चाहिए, खुशी के आंसू आने चाहिए। yes. ओके, हकीकत के बारे में हम लोग डिस्कस किया, पर मैंने कुछ दिनों पहले भी कुछ लिखा था। हरी, यू वांट टू से समथिंग? हकीकत है, वी डिस्कस्ड quite a lot in detail, but I would still like to read a few lines that I wrote about हकीकत। यस यस प्लीज। ये हाँ कविता, प्लीज, या ओके, ये हाँ कविता प्लीज। के एहसास के बारे में है जो अक्सर खुद अपने दे जाते हैं। हमसे बहुत करीब होने के बावजूद वो किस सफाई से हमें ठोकर मार के चले जाते हैं। जब मिलते हैं तो पूरी दुनिया उन तक सीमित हो जाती है। बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ कुछ भी भाता नहीं है, पर एक दिन उनका असली चेहरा सामने आता है और हम सिवाय रोने के और कुछ कर नहीं सकते। एक आंसू ही है जो शायद सबसे वफादार है, पर कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी गुलजार कर देते हैं, चाहे वो कुछ ही पल के लिए हो। कभी कभी कुछ पल की खुशी में हम जिंदगी भर की खुशी पा लेते हैं। सो लाइफ इज अबाउट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड वी हैव टू एंजॉय बोथ प्लेजर एंड पेन। सो दैट्स व्हाट आई ट्रू बिल्कुल ट्रू ट्रू, सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस। हाँ हरी सर, अब आप भी कुछ कहिए। यू नो, आप लोग का जो परसेप्शन होता है, गिव्स मी आइडियाज फॉर राइटिंग मोर। बिल्कुल, नहीं हम डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा आइडियाज आएंगे। हाँ, तो जैसे सर की फेवरेट कृष्णा पोयम डिस्कस करते करते देवकी माँ के ऊपर 4 की बजाय मैंने अब 12 लाइन लिख ली है। नहीं, आप और भी लिख सकती हैं, वैसे कृष्ण के साथ जो है हमारे और करना है मुझे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, बट आई नीड टू रीड मोर अबाउट अदर विमेन, लाइक लोग उनको सिर्फ एक रास रचाने वाला या ऐसा समझते हैं, but why he had so many wives, there is a very distinct reason for that, and how he was all। कहते हैं कि वो जब रास का नृत्य करते थे तो हर गोपी को वो अपने साथ दिखते थे,
और वो नृत्य इतना मोहक होता था कि मेरे पिताजी बताते थे कि वृंदावन में एक पार्क है, मतलब एक गार्डन है, जहाँ कहते हैं कि अपने समय में शायद कृष्ण जी रासलीला रचाते थे। और आज भी वहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि वो दृश्य इतना मनोरम होता है, इतना सुंदर होता है कि इट ब्लोज योर सेंसेस। बिल्कुल। तो जिसकी ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, डेफिनेटली उनके ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। आजकल वैसे भी वो मेरे फेवरेट हो गए हैं। रात को मैं राधा कृष्ण चैंट सुन के सोती हूँ। तो आई एम प्लानिंग टू राइट मोर, but I need to read more so that authenticity is there. रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा और आपको। हाँ, रिसर्च तो करना पड़ेगा ताकि थोड़ा ऑथेंटिक, क्योंकि एक ऐसी इमेज है जिसके साथ आप प्ले अराउंड या इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इट हैज टू बी ऑथेंटिक। आप उन्हें भगवान माने तो, अपना इष्ट देव माने तो, या एक हिस्टोरिकल फिगर माने तो, माइथोलॉजिकल, it has to be true. The facts have to be there. So I'm working on it. Hopefully soon I'll come with something more. एक्चुअली आपकी बात से मुझे याद आया कि बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिसको बहुत कम एक्सप्लोरेशन किया हुआ है। बहुत ही मतलब हम लोग को कहानियों में सुनाया जाता है कि ये भीम है, ये नकुल सहदेव है, लेकिन नकुल सहदेव के बारे में कितने लोगों को पता है? Hardly anything. Yes. बिल्कुल But भी नहीं पता। मैंने ऑनलाइन खूब पढ़ा आपकी। अभी लॉकडाउन में जब महाभारत पूरी रिपीट हो रही थी, ओरिजिनल वाली भी और स्टार प्लस पे भी, तो so many things were different, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी जो पता ही नहीं थी। तो कुछ लोग तो नेग्लेक्टेड हैं, बिल्कुल, और उनके ऊपर वाकई में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो जितना मुझे तो याद ही नहीं महाभारत में रुक्मणी को एक आध सीन के अलावा कहीं पे दिखाया भी होगा। राधा की बात ज्यादा होती है, वैसे ही देवकी का थोड़ा सा दिखाते हैं, यशोदा माँ का ज्यादा दिखाते हैं। वो जस्टिस, थोड़ी सी इनजस्टिस है बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के लिए। अब शायद यहाँ पे मेरा लव फॉर हिस्ट्री आता है। आई विल सी कि अगर मुझे हिस्टोरिकल रिसर्च अगर मैं करूँ, अपना पेपर करूँ, तो क्या मैं माइथोलॉजी उसमें कवर कर सकती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर सम गाइड हु कैन टेल मी कि अगर मैं हिस्ट्री में रिसर्च करूँ तो क्या मैं कोई माइथोलॉजिकल टॉपिक लेके उसमें रिसर्च कर सकती हूँ। आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं भी मतलब पढ़ता रहता हूँ इधर उधर इंटरनेट के। तो जैसे राजा भोग हैं, राजा भोज, उनके बारे में बहुत कम पता है, और उनकी मतलब उनके जमाने में ऐसे ऐसे टेम्पल्स बने थे। आज भी मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है जहाँ सबसे बड़ा वो है, शिवलिंग है, राजा भोज ने बनाया है। ओके। और कौन बहुत सी सारी जगह चीजें है हैं वो? जो कौन सी जगह पे है? हाँ, आप मुझे बताइएगा प्लीज, क्योंकि आई एम अ वेरी एविड ट्रैवलर। मौका ज्यादा मिला नहीं है, लेकिन अब जैसे लगता है ना कि अभी फ्री टाइम है। कोरोना नहीं होता तो अब तक भी कहाँ कहाँ घूम चुकी होती। तो मध्य प्रदेश में कहीं है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, एमपी में। ओके, नर्मदा के किनारे। रश्मि, आप एमपी आए हो कभी? Yeah, I've come to Indore. My childhood friend stays there. ओके। मैंने अभी सिर्फ ग्वालियर और ओरछा देखा है। मुझे इंदौर बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्लीन सिटी है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना उनकी सिटी को। So they've and there are a lot of historical. It ranks number 1 in cleanliness. Number 1, Yes. yeah. Yes. Yeah. उसके बाद मैसूर है। Oh wow. उसके बाद क्या है? मैसूर। Proud Karnataka. वो तो आपका इलाका आ गया। हमारा इलाका है। तुम्हारा इलाका कैसे है, नलिनी? Okay. अरे सर, बैंगलोर के पास है तो मैसूर कहाँ दूर है? तो you're from Bangalore, is it? नहीं, मैं नहीं, सर की बात कर रही हूँ, हरी सर की बात कर रहे हैं। वहीं से हूँ। मैं तो टोटल लखनऊइट हूँ, मतलब दिमाग से, दिल से, हर तरह से। चलो बिरयानी मिलेगी फिर आएंगे तो। मैं पूरी लखनऊइट हूँ। लखनऊ पे हाँ, लखनऊ पे अभी एक बहुत लेटेस्ट बुक आई है, बेगम हजरत महल और अदर क्वींस ऑफ अवध। यहाँ पे अवध राज्य होता था, तो वो मुझे लेनी है।
आप उमराव जान अदा आपने मूवी देखी है, अगर उसकी बुक आप पढ़ लें, जी यू विल बी इवन मोर फैन ऑफ दैट. आई वुड टेक हर एज अ पोएट. शी वाज अ मैंने वो कोडिशन डांसर, but as a poet, remarkable work. सत्यजीत रे की फिल्म है ना, शतरंज की खिलाड़ी, वो बहुत शतरंज ही के अच्छा खिलाड़ी, yes. है। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है पूरे लखनऊ का जो अदा था उस टाइम का, जो आप आइए लखनऊ, हम आपको खुद घुमाएंगे. बिल्कुल, मुझे वो एक कॉलेज देखना है बहुत पुराना, जो काफी कौन फेमस सा? है, कोई तो देखिए है जो क्रिश्चियन कॉलेज है. यूनिवर्सिटी बहुत, भी अपने आप में बहुत ग्रैंड और बहुत खूबसूरत यस, है, पुरानी स्टाइल कौन की सी है. है वो? लखनऊ यूनिवर्सिटी तो है ही है. और हाँ, उसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज है, वो भी एकदम पुराने स्टाइल का. बिल्कुल, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. हाँ, हम लोगों का, यस, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी पोएट्री के, तो उसी क्रिश्चियन कब? कॉलेज में कॉन्फ्रेंस था. कब कब? लखनऊ का नहीं, मैं इंदौर का बोल रही हूँ, वहां पे भी क्रिश्चियन कॉलेज अच्छा. है एक. हाँ हाँ, आई थिंक इट्स अ चेन ऑफ कॉलेजेस. हाँ, इट्स अ चेन ऑफ, बट वो भी पूरा कैंपस बहुत ओल्ड कैंपस है वो कैंपस इतना ओल्ड था क्रिश्चियन कॉलेज का. वो एकदम पैलेशियल स्टाइल में, यू नो, हाँ. जैसे पैलेसेस के डिफरेंट पार्ट्स को आप जोड़ के बना दो. हम्म. आप इमेजिन करो तो आप ये सोचोगे कि पुराने जमाने में वहां पे शायद राजा महाराजा रहते होंगे. Right. I met some awesome friends during the conference, so it was really ओ nice. ग्रेट. वो कॉलेज का हाँ. नाम है ला मार्टिन। लामाटीनिया. लामाटीनिया की फोटोज मैं अपनी खींची हुई आपको भेजूंगी. वो तो टोटल इंग्लिश स्टाइल का बना हुआ है, एंड इट्स अ वेरी फेमस बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल ओवर हियर. अभी वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल चलता है, तो वो भी बहुत खूबसूरत है. और एक तो वो नदी के किनारे है, एंड देखने के लिए वहां गई थी, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल सीबीएसई पब्लिक स्कूल से पढ़ा है. एंड इट्स अ वेरी फेमस कॉन्वेंट. लमार्ट्स जी, बोलते हैं वहाँ को. वहाँ हम लोग शॉर्ट में उसको लमार्ट्स बोलते हैं. एंड पीपल टेक प्राइड इन स्टडिंग फ्रॉम यस, देयर. So we were talking about Lucknow. हाँ, नहीं वही मैं लखनऊ में उस समय जब आप लॉग आउट हुई, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में दे रही थी. सर लामार्ट्स की बात कर रहे थे, लामाटीनिया कॉलेज की. तो मैं बता रही थी उनको कि उसी के आसपास वो गदर फिल्म में सनी देओल ने जो हैंडपंप उखाड़ा है पाकिस्तान जाके, वो हमारा लखनऊ ही है. एंड द टोंगा एक्चुअली राइड दैट ही डज ना, वो लेके भागता है. तो यहाँ एक पूरी लाइन है, उसमें एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है. मैं वहाँ बंद हो चुकी हूँ. आई वॉज लॉक्ड देयर वन, बट थैंकफुली आई वॉज. हाँ, पर वो बिल्कुल पुराने स्टाइल की है. 2-3 फ्लोर है अंदर. तो मैं ऊपर रेफरेंस सेक्शन में कुछ कर रही थी और अनाउंसमेंट हुआ होगा पब्लिकली. उस समय तो ऐसे ही बोल देते थे वो लोग, मैंने सुना नहीं. मैं अपना किताब ढूंढती रही. जब नीचे उतर के आई, अंधेरा अंधेरा लगने लगा. मैंने कहा ये क्या हुआ, नीचे उतर के आई, बंद. लाइब्रेरी वॉज लॉक्ड. फिर क्या किया तुमने? अब फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ से कुछ दिखे. तो एक खिड़की से दिखा, तो वहां से मैंने चिल्लाना शुरू किया. तो थैंकफुली द गेट कीपर यूज्ड टू लिव देयर. अच्छा, तो वहां का जो गार्ड था उसने फिर आके खोला, वरना मैं रात को वहीं सोती किताबों के साथ और सुबह आँख खुलती. और पुरानी बिल्डिंग है, पता नहीं किससे किससे मुलाकात भी हो जाती रात को, लेकिन बच गई. लेकिन कितने साल की थी आप? मैं थी करीब आधा घंटा वहां लॉक थी. और कितने साल की जाड़ों थी के आप? दिन थे. हाँ, कितने साल की थी आप? आई वॉज इन 20s. अच्छा अच्छा, नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं थी. मैं अपना ये ग्रेजुएशन के शायद टाइम की बात है, मैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की. मैं रेफरेंस लेने गई थी, तो क्योंकि किताबें थी मुझे डर नहीं लगा. और लाइट भी आप अंदर से ऑन कर सकते थे. एक आध सेक्शन की तो अंदर से ऑन कर सकते थे, पूरा सेंट्रल वाला नहीं कर सकते थे. लेकिन आधे घंटे में खैर मैं. और जाड़ों के दिन थे, 6 बजे एकदम घूप अंधेरा. Right. उसी के आगे फिर एक पार्क है. पार्क के आगे वो है बारादरी. बारादरी में उमराव जान के जो डांस वांस सब जो रिकॉर्ड हुए हैं वो वही. इट्स अ ब्यूटीफुल मार्बल स्ट्रक्चर. अभी तो क्या बोलते हैं, सेल्स ज्यादा लगती हैं, पर शूटिंग भी बहुत होती है. उसके आगे भातखंडे कॉलेज है. इफ यू आर इनटू म्यूजिक तो भातखंडे का नाम सुना होगा. इट्स अ म्यूजिक कॉलेज. इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी नाउ.
Okay. Okay. तो Great. वो उसके बाद फिर 2 मकबरे हैं बड़े बड़े, Okay. तो वो पूरी लाइन इज द बिल्डिंग ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, और ये दिस इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। Okay. लखनऊ के मिर्जा पास थैंकफुली हार्ट ऑफ द सिटी में ही है, बहुत बाहर नहीं जाना पड़ता है। जैसे हैदराबाद में गई थी, तो हैदराबाद में तो मैं आई वॉज इन द न्यू पार्ट ऑफ हैदराबाद, तो वहाँ चार मीनार जाने में तो ऑलमोस्ट आई क्रॉस द एंटायर सिटी। वो बोले मैम अब तो इसको हैदराबाद कोई काउंट ही नहीं करता, हैदराबाद नया वाला ही काउंट करते हैं, Right. क्योंकि पूरा शहर उधर फैल गया है। Hyderabad is also a very beautiful city. Very beautiful. I went to Golconda. One day only I went to Golconda. I went to this Sayyid Tombs and Charminar, the market. Saint Sagar. पूरा मैंने थैंकफुली, लेकिन चारमीनार के थोड़ा आगे से फिर मेट्रो रूट्स हैं, एंड आई हैव नेवर सीन सच अ ह्यूज मेट्रो नेटवर्क। अभी मैंने क्योंकि ज्यादा मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया है, दिल्ली में किया है, नोएडा, लखनऊ और वहां पे, तो 4 stories 3 stories मेट्रो स्टेशन। अच्छा। तो वो दैट वाज अनदर एस्पेक्ट। बट हैदराबाद में मुझे लखनऊ की फीलिंग आई, क्योंकि वो उर्दू कल्चर है। बट वन थिंग आई मिस्ड आउट, जो रिसेंटली अभी जब इलेक्शन हो रहे थे तो मुझे पता चला कि चार मीनार के जस्ट पीछे मंदिर भी है, जिससे वो अब हैदराबाद का नाम रखना चाहते हैं। फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टेम्पल। तो देयर वाज नो इंफॉर्मेशन ऑन नेट अबाउट इट। मैंने तो नेट से ही, क्योंकि आई हैड नो वन टू गाइड मी, अकेले ही, मेरा एक रात पहले कॉन्फ्रेंस था, उस दिन पूरा दिन था मेरे पास और अगली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो इंटरनेट से ही मैंने पूरा फिर एक्सप्लोर किया हैदराबाद, देख देख के कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी डेफिनेटली, एंड पीपल आर वेरी पोलाइट। ऐसा नहीं लगता कि लैंग्वेज इशू नहीं है, लैंग्वेज इशू बिल्कुल नहीं मुझे लगा। बैंगलोर से मैं एक दिन थी, वो भी एग्जाम देने गई थी आफ्टर 12th, तो लेकिन मैंने उस जमाने में 88-89 में मैंने एस्केलेटर वहां पे पहली बार देखा था, जब इंडिया में और कहीं एस्केलेटर्स थे ही नहीं। आई सॉ दैट नंदी टेम्पल एंड विधान सभा। अच्छा। नंदी टेम्पल एंड विधान सभा, इससे ज्यादा बैंगलोर एक दिन में आप क्या करोगे? डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो जो माइलस्टोन्स थे वो कवर कर लिए थे, मैसूर नहीं जा पाए। फिर अगली बार जब आएंगे तो बताइए, और भी अच्छी अच्छी जगहों का मैं सजेशंस देता हूँ आपको ले जाने के लिए। कब्बन पार्क तो मिलके प्लान करते हैं ना, रश्मि, मिल के प्लान करते हैं। हाँ, बैंगलोर हरी सर जो है हमारे होस्ट होंगे। आप कहे ना कहे, हमने आपको होस्ट बना दिया है। क्यों नहीं, आपको ऐसे ऐसे मंदिर दिखाएंगे, इतने अच्छे आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, आप देखते हैं चकाचौंध। आई लव टू एंजॉय ओल्ड आर्किटेक्चर। मुझे या तो बीच चाहिए होता है या आर्किटेक्चर चाहिए होता है। मुझे शॉपिंग मॉल्स नहीं देखने, ये वो नहीं देखना। बहुत सारे लोग वही सजेस्ट करते हैं, कहते हैं वो मॉल्स तो सब एक जैसे ही होते हैं ना, आप आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर लो या नेचर एक्सप्लोर कर लो। पार्क्स बहुत अच्छे, गार्डन्स बैंगलोर में गार्डन्स अच्छे हैं बहुत। बैंगलोर में गार्डन्स बहुत अच्छे। अरे वो गार्डन भी गए थे हम। हाँ, अच्छा याद दिलाया। फेमस गार्डन नाम बताइए सर। नहीं, हाँ, लालबाग। ये विधानसभा के पास ही है ना ये? कब्बन पार्क है। कब्बन पार्क, वही बोल रही हूँ आपको। कब्बन पार्क, वो देखा। रश्मि तो बहुत बार आई होगी। एक बार आई थी, मेरा कुशाल नगर आई थी, तो कुशाल नगर में कुछ राइट्स चालू हुए। कुशाल नगर में मैं रही थी 4-5 दिन के लिए, तो आई हैड टू गो आउट ऑफ कुशाल नगर, स्टे इन बैंगलोर फॉर 1 night. So I was staying near in a club near कब्बन पार्क। तो कब्बन पार्क एक्सप्लोर किया, और वहां पे मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म चल रही थी, फ्लाइट थी, तो मैंने वो 1 घंटे का फिल्म देखा। उसके लिए मुझे बड़े स्क्रीन पे उसको देखना था, तो वो देख लिया सुदीप को। मैं सुदीप की बहुत बड़ी फैन हूँ। I know you are a big fan of him. And I used to wonder कि मतलब ये तो are you not Marathi? No, I am Karnataka. I am from Karnataka. वो that I used to wonder at that time कि मराठी होके इसको साउथ इंडियन मूवीज में क्या इंटरेस्ट है।
मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, कल ही एक्सप्लोर किया, इतने सब फिल्म्स है बाप रे। सो उसका फिल्म देखा 1 घंटे का, 2.5 का आर्ट का था, 1 घंटे का देखा और फ्लाइट पकड़ने चली गई, बस मुझे देखना था बड़ी स्क्रीन पे उसको। खुशहाल नगर में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत वहीं बहुत पे फेमस गई थी मैं, टिबेटन। वहीं हम्म, राजा बहुत। राजा सीट की ऐसा कुछ है, 2-3 जगह, एक वाटरफॉल है। बहुत खूबसूरत है कुशाल नगर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स प्रॉपर टाउन सिटी क्या? हाँ कुशाल इट्स अ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, बैंगलोर से पूरा अराउंड 250 किलोमीटर्स। ओके। अच्छा है वो, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। कॉफी प्लांटेशंस बहुत है वहाँ पे कॉफी प्लांटेशंस बहुत है, सो आप कब छापेंगे अपना किताब? 1-2 महीने के अंदर, हो जाएगा। मैं मैक्सिमम बाय मार्च से लेट नहीं करूंगी मैं, मेरा टारगेट है वो। सिर्फ पोएम्स लिखेंगी या स्टोरी भी लिख रही हैं उसमें? पोएम्स। स्टोरी लिखने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, मेरा बड़ा मन है एक स्टोरी लिखने का, और अभी नहीं, वो वी हैव अ कॉमन फ्रेंड ऑन फेसबुक, गोपा कुमार ना, तो हाँ उनका एनुअल कंपटीशन होता है, उसमें एक बार मैंने स्पेशल मेंशन जीता भी है, लेकिन कहानी लिखने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है, पोइट्री के लिए नहीं। पोइट्री आप जब बोलो ऐसे बैठी और 20 लाइन तो था, और वो मैंने स्टोरी लिखना उस समय शुरू किया था, 5 लाइन टाइप की है, 2 महीने हो गए, अभी तक 5 लाइन के आगे नहीं बढ़ी हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब तक प्लॉट अच्छे से नहीं मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, मैं गुडी गुडी स्टोरीज नहीं लिखती हूँ, हैप्पी एंडिंग वाली। सेम हियर। हाँ, मैं डार्क जॉनर, डार्क डार्क रहते, जॉनर मेरा फेवरेट है, या सैड एंडिंग्स है। सैड एंडिंग। कंपटीशन के लिए मोटिवेशनल लिख लो, अलग बात है, लेकिन बाकी मुझसे वो गुड गुड स्टोरीज, हैप्पी हैप्पी वाली नहीं लिखी जाती, इसीलिए मुझे टाइम लगता है। आप एक बट यू पैराग्राफ वाली ऑलमोस्ट, स्टोरी लिखिए, एक पैराग्राफ से ज्यादा मत लिखिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, जल्दी भी खत्म हो जाएगा। मेरी एंथोलॉजी में 4 स्टोरीज पब्लिश हुई हैं। आप अच्छा। उसे अभी, बुक तो ऑल सोल्ड आउट है, बट यू विल गेट इट ऑन ई बुक, हाँ हाँ, अमेजोन पे है। ओके, उसका लिंक भेजिए, लेकिन मैं। वो उसमें मुझे टाइम लगता है, इट डजंट कम नेचुरली। लेकिन पहले मैं कहानियां बहुत लिखती थी, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी स्टोरीज एंड नहीं होती है, मुझे समझ ही नहीं आता, तो मैंने वो, तब तो सब अच्छा अच्छा लिखना चाहते थे शुरू में ना, यू वांट टू राइट हैप्पी स्टोरीज, तो वो समझ नहीं आता था एंड, तो मैंने कहा मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगी नहीं जिसके लिए मुझे हैप्पी एंडिंग ढूंढनी पड़े। दैट्स वेरी टायरसम, वेरी। स्टोरीज लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा प्लॉट हो। हाँ, तो जो मैंने लिखी है मैं उनसे बहुत खुश हूँ, लेकिन जो छपी है डार्क जॉनर वाली, वो हैप्पी स्टोरीज, तो अभी मुझे मुझे लगता है बहुत चाइल्डिश एफर्ट्स, इसीलिए वो वापस आ गई थी। तो कभी कभी रिजेक्शन टीचर्स यू ना, कि इसमें अभी और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो मुझे स्टोरी राइटिंग में आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, वर्क हार्डर। तो माय फेवरेट जॉनर इज पोएट्री। शॉर्ट स्टोरीज पे कर सकते हैं अगला वीडियो। नलिनी लिखेंगी तो वी कैन डिस्कस अ फ्यू ऑफ योर स्टोरीज आल्सो नेक्स्ट वीडियो में भी, if you would be excited to share. नहीं, वो 4 स्टोरीज तो पब्लिश हैं, 4 स्टोरीज वो पब्लिश हैं, एक स्टोरी जिसके लिए मैंने वो भारत अवार्ड जीता था, पोएट्रीज अवार्ड जीता था, वही गोपा कुमार का जो होता है भारत अवार्ड, उसमें मैंने आई वन द फोर्थ प्लेस, तो वो मोटिवेशनल है। आई कैन सेंड यू द लाइक मेल, पूरा आप पढ़ लो, फिर इफ यू फील लाइक कि हम लोग उस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो कर सकते हैं। फर्स्टली यू रीड दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने मेरी कहानियां पढ़ी हैं। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, तो मैं भेजूंगी, आई सेंड यू द ऑल द 5 स्टोरीज टोटल जो पब्लिश हुई हैं। के लिए भी बुकिंग हो गई लगता है नलिनी। मंथली वन। आप अपने YouTube में भी पढ़ सकती हैं अपनी कहानी। तो मैं एक्चुअली पोइट्री का सोच रही थी, मैंने आपसे पूछा था ना आप पोइट्री उस पर कैसे लिखते हैं, मुझे वो सीखना है, तो कैनवा में सीख लूंगी, कैनवा में एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैं उसका एक वीडियो बनाना चाह रही थी, वेयर आई वुड रिसाइट एंड द पिक्चर विल बी देयर, जैसे सर बनाते हैं आप बनाते हो, वो मुझे नहीं आ रहा था,
वर्ड पे ट्राई किया तो इट वाज अ टोटल फेलियर, वो सेट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं जब सीख लूंगी तब करूंगी फिर। यस कैनवा अच्छा है, कैनवा में अच्छा है। हाँ, तो कैनवा मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि वो उस पे, अभी मैंने सिर्फ उसके इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखे थे, तो अब मैं उसको बनाऊंगी। Canva is तो very good. यूट्यूब में तो इसने बोल दिया रोई वो रुलाने वाला है, लोरी वाला। उस दिन जो है मैं अलग मूड में थी, तो मतलब यूजुअली यू कैन गेज कितने महीनों बाद मैंने उस दिन वो वीडियो किया है लोरी वाला। छोटा भी है वो, लेकिन भेजा मन से किया था। सुबह उठ के देखा वो। बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा गाती हैं तो आप, अभी सोच ही रही इतना थी। सुंदर आवाज आपकी बहुत अच्छी है, गाती है बहुत अच्छा है थैंक यू सर। मुझे म्यूजिक का शौक था, पर क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे और लखनऊ में माहौल ऐसा नहीं था कि आप दूर कहीं जाके, क्योंकि टाइम नहीं था, पापा का टूरिंग जॉब होता था, मम्मा का भी वर्किंग था, आई कुडंट लर्न। वो 2-3 विशेष मेरी रह गई, एक गिटार सीखने की, एक का वोकल म्यूजिक सीखने की हिंदुस्तानी स्टाइल, और ये भरतनाट्यम। वो एक भात खंडे कॉलेज जो मैं आपको बता रही थी, वहां ये तीनों चीजें पूरी हो सकती थी, बट आज उस समय के हिसाब से बहुत दूर था, और उस जमाने में अकेले जाने नहीं देते थे। तो जब कॉलेज वॉलेज शुरू हो गया तो यू फील कि अब आप तो बड़े हो गए, इतना काम है, कौन सीखेगा। आई विश आई कुड गेट अ गुरु, मुझे घर पे सिखा दे गिटार, आई रियली वांट टू लर्न। चलिए, आप तो रेडियो जॉकी हैं, अच्छा पोएट्स लिखती हैं, गाती भी हैं। अब नेक्स्ट सेशन में आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ेगी, एक ही छोटी सी सेशन बनाएंगे। गाती मैं वैसे ही हूँ जैसे वो थोड़ा गुनगुना दिया 1-2 लाइन। मेरा गला बहुत जल्दी खराब होता है, अभी तो मैं गाने का रिस्क नहीं लेती, तो सामने वाले बोलेंगे लो अभी गाना भी सुनाना शुरू कर दिया। क्यों नहीं, हमारे टॉक शो में कुछ भी किया जा सकता है, गाने भी गाए जा सकते हैं, कहानी भी सुनाई जा सकती है, पोएट्री तो है ही। वो फिर सबको करना पड़ेगा। आई रियली वांटेड, जैसे हम लोग ने अपना न्यू ईयर बैच किया था ना, ऐसा हो कि हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े, चाहे टॉपिक डिसाइड कर ले, चाहे जैसे होली आ रही है, होली के पहले कुछ मजेदार हो जाए। ओके, डन। होली पे कुछ मजेदार लिखते हैं, हल्का फुल्का, और फिर सब लोग मिलके अच्छा करते आइडिया हैं। दे रही हैं नलिनी जी। हाँ, होली के पहले कर ही देते हैं कुछ, होली के दिन पे रिलीज करेंगे ना। हाँ, वो मजा आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट टोन उसका डिफरेंट होगा, सीरियस स्टफ नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। जस्ट कीप इट लाइट। वो अपने आप में कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए, हल्का फुल्का लिखने के लिए विल हैव टू मेक एफर्ट, ऐसे नेचुरली तो नहीं आएगा। राइट। चलिए फिर अच्छा हो गया, आज तो काफी सारी चीजें हमने बात कर ली। बहुत वेरीड, बहुत वेरीड। यस, चलो, let's end Okay the then. session. Bye Nalini, bye Hari. yeah, have a Everybody pleasant evening, enjoy, take care, take care. Thank you. bye. See you again. Watching our Yeah. channel, please subscribe to the channel if you like the poems that we are sharing, our guests are sharing, and leave your comments. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you everybody. Bye. Bye. Bye.